Hello, 7th standard. Geography, we will continue our next lecture. But now we do complete our science portion, okay? Our this chapter is running only uh, food safety. Huh? Rather, we first finish this and then I'll take next one, okay? In this chapter, we seen about qualitative wastage of food, quantitative wastage of food, how the food is spoiled, okay, who are the factors which are responsible for that, and how the food safety is important. Now we see the food storage and preservation. It's very very important things how to store the food as well as its preservation. That we know it almost of all of us eat preservative foods, okay. In When we went any mall and all, that we see so many packets are there, tetra packets are there which are preserved food, okay. Our jam, jelly, whatever you purchased, that is also a preserved food. Means what? Preserve means what? Something is added, some chemical is added or microorganisms are added to not to spoil that food, okay. It's a preservative, some preservative is added in that food. That food is called preservative food, and that method is called preservation. Now see here, 16 October is celebrated as the World Food Day. Nowadays it's coming soon, no? That's why you have to be remember that 16 October is a World Food Day to work towards food security and avoid food wastage. Okay, ये इस दिन आपको रिमेम्बर करना ही है कि फूड सेफ्टी एंड फूड स्टोरेज कैसे करें, food wastage कैसे avoid करें, okay. Food storage and preservation, we have learned about various methods of safe storage of food like freezing, drying, boiling, airtight packing, etc. ये तो हमने देखा है ना लास्ट ईयर, फ्रीजिंग करते हैं, हाँ मम्मी ड्राई करती है, कुछ रखना है सेफली बहुत दिनों के लिए. बॉइलिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेथड, okay. Now see here, these different methods prevent the growth of microorganism in food and hereby they save the food from spoiling. इसकी वजह से फूड स्पॉइल नहीं होता है. दूध को हम 2 बार उबालते हैं ना, तो जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता है. कुछ बचा हुआ है, कुछ तो मम्मी गर्म करके परोसती है, तो वो भी वेस्ट नहीं होता है. फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रोटेक्शन, prevention of food spoilage by microbial growth and infestation by pets is called food protection. हाँ, घर में अगर कॉकरोच है तो उनकी वजह से फूड स्पॉइल ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इन्फेस्टिएशन. वो ना हो, इसके लिए भी हमको देखना पड़ता है क्या करना चाहिए, एज वेल एज उसमें माइक्रोब ना आए, गंदा ना हो खाना, कुछ ना हो, इसके लिए भी हमको फूड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. फूड प्रिजर्वेशन, यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम food spoilage due to the internal factor is called food preservation. Got it? Now, national institutions, the Food and Drug Administration, FDA, it's called FDA. FDA is working in India for avoiding spoilage of foods and all, है ना. भेसल होती है ना बहुत सारे, तो वो उसको देखने का काम किसका है? एफडीए का है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत सारे फूड्स है, फ्रूट्स है, देखो उनको कलर किया जाता है ऐसे, या तो फिर क्लोरीन डाल के जल्दी से पका दिया जाता है. ये केले तो हमको 12 महीने मिलते हैं, वो तो कच्चे होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसा होता है उसमें डुबा के उसको ऊपर निकालते हैं तो येलो बन जाते हैं. तो ये भी केमिकल से ही उस केले को पिकाते हैं. तो ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऐसी चीज़ें देखें, फेसल देखें, और अपनी सेहत पे असर ना हो, समाज के लोगों पे असर ना हो, तो उसके लिए कौन काम करता है? ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए है, एफडीए ऑफ इंडिया है ना, एफडीए, तो ये काम करता है. This is a government organization and control the production and distribution of food, drugs and their standardization. Food Safety and Standardization Authority of India is FSSAI, has been established as per the Food Safety and Standardization Act 2006. The website is also given. You may search, you may go there through that website and see how these are working and all. ओके, अगर आप फूड अडल्ट्रेशन होता है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हो.
कि ये ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें. ओके, हियर some methods of preservation is given. Freezing, smoking, use of insecticides, irradiations, use of preservatives, natural preservatives and chemical preservatives, and pasteurization. Okay, we see one by one. Freezing, biological and chemical reaction in food material are slowed down at low temperature. As a result, food remains in good condition for a longer duration. That is why the refrigerators are used in the kitchen. रेफ्रिजरेटर में मम्मी फ्रीज में रखती है ना, बहुत आइसक्रीम भी रखती है, या तो हम पीस बहुत सारे मिलते हैं सीजन में, तो उसको निकाल के भी हम रखते हैं, तो बहुत दिनों तक लंबे समय तक रहते हैं. मैंने तो ये भी सुना है कि मैंगो अगर मई के महीने में काट के रखो तो वो आपको सितंबर दिसंबर तक मिल जाएगा खाने के लिए, वैसे की वैसे. तो उसको प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं बहुत दिनों तक. तो उसमें क्या होता है, फ्रिज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पनपते नहीं है, इसलिए वो फूड खराब नहीं होता. स्मोकिंग, फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक. एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज इन दिस मेथड. एल्यूमिनियम फॉस्फेट का स्मोक अगर डालेंगे तो भी प्रिजर्वेटिव के तहत काम करता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनपते हैं. यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, मेल्थेनियन इज स्प्रेड एट द ऑन द गोनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स. या इंसेक्टिसाइड्स ना आ जाए, जैसे छोटे वो कीड़े होते हैं ना, कीड़ा लगता है ना, वो धान का कीड़ा वगैरह, वो ना लगे, इसलिए ये उस पर छिड़का जाता है. irradiation, this method is food is exposed to the ionizing radiation such as high energy electron emitted by accelerators, X-rays, gamma rays emitted by the radioactive isotopes. This process destroys the microbes, insects. Shelf life of the fruit increases due to increases in ripening period. The shelf life of potatoes and onion increases due to slow down sprouting. ये यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा रेज, गैमा रेज इमिटेट किए जाते हैं वो फ्रूट्स पे, उसकी वजह से उनका शेल्फ लाइफ बढ़ता है. मीन्स उनका राइपनिंग पीरियड बढ़ा दिया जाता है, पकने का पीरियड, तो उसकी वजह से उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है. देन यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन गैसेस फिल्ड विथ एयर टाइट पॉकेट्स ऑफ पोटैटो वेपर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, thus the preventing the growth of fungus and insects in them. हम तो कितने सारा पॉकेट फूड खाते हैं ना, वेपर्स खाते हैं, कि बालाजी फेमस है, बालाजी फेमस है ना, और बहुत सारे फेमस है, तो बस वो खाते रहते दिन भर, 5-5 रुपए का पैकेट मम्मी दो. तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, इसलिए वो एयर टाइट हो जाता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आते हैं, पनपते हैं. यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल. Some naturally available material like salt, sugar are also used as a preservative in the pickle, jam, मुरब्बा एंड पेट. नेचुरल प्रिजर्वेटिव डालते हैं, ऐसे ये साल्ट, शुगर, ऑयल, ये है नेचुरल प्रिजर्वेटिव. कभी आप पिकल में देखा है कैसे ऊपर ऑयल की तरल तवंग रहता है ना ऑयल का, तो किसकी वजह से, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो. केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर. आजकल तो ये सबके घर में है, विनेगर से फ्रूट भी हम धो लेते हैं खाने के लिए. अभी कोरोना वायरस की वजह से हम सब ये एहतियात बरत रहे. Citric acid, sodium benzoate, and some nitrate and nitrate salt are some examples of the chemical preservatives. They are used in a sauce, jelly, jam, and packages ready to cook vegetables and ready to eat food. These preservatives keep in the food safe for a long duration. आजकल तो रेडी उपमा मिक्स मिलता है, खिचड़ी मिक्स मिलता है, वड़ा मिक्स मिलता है, ढोकला मिक्स मिलता है, आजकल तो बिरयानी भी मिक्स मिलती है. और हाँ, मैं तो बहुत बार ये पाव भाजी भी लाती हूँ, पाव भाजी मिक्स वो भी मिलता है. तो उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं. वो क्या है, 5 मिनट गर्म कर लो और खाओ, पका हुआ रहता है. 5 मिनट आप फिर से उसको गर्म करते हो और खा लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं. पास्चराइजेशन, दिस मेथड इज रिलेटेड टू मिल्क ओनली. दिस मेथड इज इन्वॉल्व हीटिंग द मिल्क ऑफ अदर सिमिलरिटीज फूड स्टफ अप टू a certain temperature, example milk at 80 degrees centigrade for 15 minutes, so and cooling it quickly. This destroy the microbes present in the milk and keep for a longer duration. तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड को 15 मिनट तक पकाया, उसको उबाला जाता है दूध को. 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को उबाला जाता है 15 मिनट, और उसको झट से एक सेकंड में ठंडा किया जाता है.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन. एंड लुइस पाश्चर, ये नाम है देखो. द माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पाश्चर डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू प्रिवेंट माइक्रोबायल ग्रोथ इन द फूड. ये लुइस पाश्चर है, उन्होंने ही ये पाश्चराइजेशन मेथड खोज निकाला है. उनके नाम से ये इसका नाम पाश्चराइजेशन हो गया. इन महाराष्ट्र इरिडेशन प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट द Lasalgaon for onion and potatoes and नवी मुंबई फॉर द स्पीसीज एंड कंडिमेंट्स. यहाँ पे दिखा है महाराष्ट्र में ये प्रोसेस किया गया है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए. जो ऑनियन पे गैमा रेज एक्सरेज डाले गए हैं. तो ये कहाँ पे है? नवी मुंबई और लासलगांव. लासलगांव ऑनियन के लिए फेमस है ना, तो आपको पता ही होगा. तो वहाँ पे स्पीसीज ये एक्सपेरिमेंट किया गया है. व्हाट इज मीन बाय अडल्ट्रेशन ऑफ फूड? अडल्ट्रेशन ऑफ फूड होता है ना, मिक्स होता है ना कुछ भेसल. तो क्या होता है? अब देखो, फूड द हेल्थ ऑफ द पीपल यंग एंड ओल्ड पुअर एंड रिच इज एंडेंजर्ड बाय फूड adulteration. Different types of adulteration affect our health in different ways. Some adulteration cause abdominal discomfort or poisoning, while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of a time or even cause cancer. ये फूड एडल्ट्रेशन की वजह से देखो क्या होता है, आपको कैंसर भी हो सकता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है. तो मिल्क है, उसमें पानी डालते हैं, रेड चिली है, रेड कलर डालते हैं. सीड्स ऑफ पपाया किस में डालते हैं आप? ये गरम मसाला का प्रकार है ना, उसमें डालते हैं. मिरे बोलते हैं मराठी में. आइसक्रीम में भी भेसल करते हैं. फूड इज अडल्ट्रेटेड इन दिस वे टू. रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट components of food. Removal of fat content milk, essence of cloves, cardamom, mixing of low quality inedible or cheaper material or a harmful color to food, mix of some harmful materials like small stones, fine sand, iron, फिलिंग, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स एंड सॉडस्ट, ये भी डाल के एडल्ट्रेशन किया जाता है. आप अब तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो. देन हाउ विल यू फाइंड आउट इफ द फूड हैज़ बीन अडल्ट्रेट? ये कैसे आप कर सकते हो? मिल्क में क्या होता है? वाटर. रेड चिली में ब्रिक डस्ट. टर्मरिक पाउडर में मिथाइल येलो एंड रवा में फाइन आयरन फिलिंग. तो टेस्ट है, कौन सी टेस्ट है? पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन ए ग्लास लाइन एंड स्लाइटली incline it to spread the drop. If the spread milk does not appear milky white, water must have been added to it. Make a spoonful of chili powder in a beaker. Add water up to half of the beaker. Stir it and leave it undisturbed for a few minutes. If red layer is seen settle at the bottom of the beaker, it must have been adulterated with the break disc. तो ये यहाँ पे मेथड दिए गए हैं, आप ये पढ़ो, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट पीरियड में ये मैं जो पॉइंट है वो कंटिन्यू करूँगी और उसके साथ नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी. ओके. अब तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो. आपका होमवर्क है राइट द मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन. ओके, ये लिखो और मुझे व्हाट्सएप पे डालो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.